Question number 8. So here we have to find the value of n. Question is find the value of n if the ratio of the fifth term from the beginning, ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end, है ना, ratio of the two terms, which two terms, fifth term from the beginning to the fifth term from the end, in the expansion of binomial. Binomial is, it's a fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 raised to n. In the expansion of this binomial, fifth term from the beginning to the fifth term from the end is equal to root 6 by 1. The ratio of the given two terms is root 6 by 1. Find the value of the n. What you have to find? Find the value of the n. So what you have to do? So let this first term is nothing but the x and this second term is nothing but the y. Assume कर ले, put x equal to fourth root of 2 and y equal to 1 upon fourth root of 3. So we are getting x plus y raised to n. So we know the binomial expansion of x plus y raised to n. So what is x plus y raised to n? X plus y raised to n is nothing but the nc0 x raised to n y raised to 0 plus nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1 plus nc2 x raised to n minus 2 y square plus nc3 x raised to n minus 3 y cube. देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म क्या आएगी? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज nc4 x रेज टू n minus 4 y रेज टू 4. ऐसे ऐसे जाएगी. लास्ट टर्म क्या आएगी? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म विल बी ncn, इट्स ncn x रेज टू 0 y रेज टू n. ऐसा होगा स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? एक्सपांशन ऑफ x प्लस y रेज टू n. नाउ व्हाट इज द सेकंड लास्ट टर्म? यहाँ पर ncn रेज टू y रेज टू n है, तो इसकी आगे वाली टर्म क्या होगी? इट विल बी लाइक दिस, ncn minus 1 x रेज टू, वी कैन से x रेज टू कितना होगा? 1 एंड y रेज टू n minus 1. लास्ट टर्म की आगे वाली टर्म ये होगी, यस और नो? है ना, ये ncn है तो ncn के आगे होगा ncn minus 1. देखो ये nc3 है तो इसके आगे होगा nc2, इसके एक कम. इसके आगे वाली एक टर्म क्या होगी? तो nc, इट्स ncn minus 2 x रेज टू 2 y रेज टू n minus 2. यस. इसके आगे वाली एक और टर्म क्या होगी? देखो ncn minus 3 ncn minus 3 x रेज टू 3 y रेज टू n minus 3. देखो ये x रेज टू 0 x रेज टू 1 x रेज टू 2 x रेज टू 3 n minus 1 n minus 2 n minus 3. डन. उसकी एक आगे वाली टर्म क्या होगी? सो इट्स nc n minus 4 x रेज टू 4 y रेज टू n minus 4. इसके आगे आगे चला जाएगा ऐसे 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 करके, ये पूरा ज्वाइंट हो जाएगा. डन. So here what we are given? Ratio of the fifth term, ratio of the fifth term from the beginning. तो ये first term, ये second term, third term, fourth term and fifth term. This is fifth term from the beginning, and fifth term, ratio of the fifth term from the end. तो ये last वाली term, ये 1 2 3 4 और ये 5, fifth term from the end. So this one. So what we are given? We are given ratio of these two terms. Clear now? What we are given? Ratio of these two terms is given. So we have to write that ratio. So now ratio of these two terms, that means fifth term from the beginning. So it's a nc4
NC4 x raised to n minus 4 y raised to 4. Ratio, that means numerator by denominator. Ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the last. Fifth term from the end. So 1, 2, 3, 4. This is the fifth term from the end. That is NC n minus 4. NC n minus 4 x raised to 4 y raised to n minus 4 equal to, this ratio is given. Ratio of this two term is root 6 ratio 1. It's a root 6 by 1. Now this is given, है ना, ये given था, ये derive करने के लिए हमने इतना लिखा. Now solve this equation and we'll get the value of n. That is our question. Find the value of the n. Index of this binomial वो हमें find करना है. तो देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि NCR is equal to NC n minus r, है ना. NCR की वैल्यू NC n minus r की वैल्यू की इक्वल होती है ना. सपोज ऐसे करते हैं कि 5C1, तो 5C1 की वैल्यू और 5C4 की वैल्यू इक्वल होती है. डन. सो हियर कैन वी रिप्लेस दिस NC4 with NCn minus 4. So NC4 and NCn minus 4 both are equal. Can we cut it? ये कट हो गया. स्टूडेंट्स ये समझ में आया? Done. So remaining terms are x raised to n minus 4, x raised to n minus 4 into y raised to 4 upon x raised to 4. Here it's a y raised to n minus 4 equal to root 6 by 1. Root 6 by 1. Done. अभी यहाँ पर हम पावर और एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करें. Here two terms are in division, their base are equal, and therefore we can perform the subtraction of their power. So here subtraction of power will be n minus 4 minus 4. ये 4 ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा और ये y का जो 4 पावर है वो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा. So what we are getting, x raised to n minus 4 minus 4. So it will be x minus 8. Done. So it's x raised to n minus 8, है ना. x raised to 4 और ये 4 सब्ट्रैक्ट और डिनोमिनेटर में y raised to n minus 4 minus 4. So denominator we are getting y raised to n minus 4. Y raised to n minus 4 equal to root 6 को लिखे 6 raised to 1 by 2 और ये 1. क्लियर? इतना समझ में आया? Now we have to put the value of this x and y. What is our x and y? Our x is 4th root of 2 and y is 1 upon 4th root of 3. So now we have to put x equal to 4th root of 2 means 2 raised to 1 by 4. ऐसा होगा. And y is 1 upon 3 raised to 1 by 4. ये पुट करना पड़ेगा. So now x raised to 1 by 2. So therefore x raised to n minus 8. So now we are replacing this x with 2 raised to 1 by 4. So 2 raised to 1 by 4 and whose power is, इसका पावर क्या है, n minus 8. n minus 8 is the power upon y. What is y? It's a 1 upon 3 raised to 1 by 4. 3 raised to 1 by 4 और उसका पावर 1 का पावर n minus 8 तो 1 और डिनोमिनेटर का पावर होगा n minus 8 and this is equal to 6 raised to 1 by 2. Is that clear? This is our denominator of denominator, है ना. ये पूरा ऊपर न्यूमरेटर रहेगा और ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा. सो और सिंप्लीफिकेशन, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज, ये न्यूमरेटर ऑफ डिनोमिनेटर में जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. तो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, 2 रेज टू 1 by 4 रेज टू n minus 8 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 3 रेज टू 1 by 4 इंटू n minus 8 इक्वल टू 6 रेज टू 1 by 2 अपॉन 1. अपॉन 1 को अभी हम नहीं लिख रहे हैं. डन. सो नाउ these two terms are in multiplication, same power, or we can perform the multiplication of power
पहले वो सिंप्लीफाई करो. सो पावर ऑफ पावर विल बी 2 raised to 1 by 4 into n minus 8. Here it's a 3 raised to 1 by 4 n minus 8 equal to 6 raised to 1 by 2. ये समझ में आया पावर ऑफ पावर. तो 1 by 4 into n minus 8, 1 by 4 into n minus 8, ये दोनों पावर इक्वल है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे? देखो पावर कॉमन है ना. पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन स्टडी किया था. पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ऐसा रूल था, इफ x रेज टू m इंटू वाई रेज टू m इज देयर, वी कैन राइट एक्स वाई रेज टू m, है ना. पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो देखो ये पावर कॉमन है, तो 2 इंटू 3 करके पूरा पावर कॉमन लिख सकते हैं. सो इट विल बी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, है ना. ये तो फॉर्मूला था, ये बीच में कहीं सिंप्लीफिकेशन में नहीं आया. सो इट्स 2 इंटू 3 रेज टू n minus 8 by 4, n minus 8 by 4 equal to 6 raised to 1 by 2. Clear? So 2 into 3 होगा 6. So it's a 6 raised to n minus 8 by 4 equal to 6 raised to 1 by 2. So here two powers are equal, base equal, and therefore we can compare this exponent. So by comparing the exponent, we can say n minus 8 by 4 equal to 1 by 2. This is one equation. Solve this equation. It's a n minus 8. 4 numerator में जाएगा तो हो जाएगा 2. And therefore n equal to minus 8 will go into right hand side. So 8 plus 2, n equal to 10 is the answer. This is the answer. Clear? Understood? बाकी सब वेरी गुड. चलो 9 सम में कैलकुलेशन करना है सिर्फ, उसके अलावा नया कुछ नहीं है. सो हियर 9 सम इज 9 sum is 1 plus x by 2 minus 2 by x raised to 4. Condition is x is not equal to 0. If you are putting x equal to 0, denominator will not define. Done? So we have to perform the expansion of this. So this is trinomial. In this chapter we have studied binomial. हमें बाइनोमियल का एक्सपांशन बताइए, ट्राइनोमियल का एक्सपांशन नहीं पता है. So what you have to do? First we are converting this trinomial. You know, total 3 terms are there. Converting this trinomial into binomial by taking these two terms. Which two terms? X by 2 minus 2 by x as a one term raised to 4. So now this trinomial is converted into binomial, and we can perform the expansion of this binomial by using binomial theorem. Done? So 4 power is there. So what is the expansion? 4c 0 से स्टार्ट होगा, है ना. ये फॉर्मूला आ गया 1 plus x raised to n. So it's a nc0. nc0 x by 2 minus 2 by x raised to 0 plus 4c1 x by 2 minus 2 by x raised to 1, ये 1 पावर होगा, प्लस 4c2 x by 2 minus 2 by x raised to 2 पावर होगा. यहाँ पर c के साथ जो आएगा वो पावर में आएगा, प्लस 4c3 x by 2 minus 2 by x cube plus 4c4 x by 2 minus 2 by x raised to 4. This is the expansion using binomial. बस ये 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर को एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, वी विल गेट द आंसर. 1 पावर 2 पावर 3 पावर का फॉर्मूला हमारे पास है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं. 4 पावर के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई बायनोमियल थ्योरम ना. 4 पावर के लिए हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे. और ये सब वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4c0? 4c0 is 1, 4c1 is 4, 4c2 is 6, 4c3 is again 4, and this 4c1 is again
1, तो 14641 ये वैल्यू होगी, ये सब NC0, NC1, NC2, NC3 और NC4 की वैल्यू। डन। सो पुट दिस वैल्यूज। So this is equal to 1 plus 4C1, that is our 4, and expansion of x by 2 minus 2 by x raised to 1 power. So same रहेगा, so x by 2 minus 2 by x plus NC2, NC2 is 6, NC2 6, and this one is x by 2 minus 2 by x square. तो इसका एक्सपांशन आता है हमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म करेंगे तो एक्स एक्स 2 2 कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा -2 ओनली, प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 4 बाई एक्स स्क्वायर। डन। प्लस 4C3, 4C3 की वैल्यू पता है 4, और ये क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी, ऐसा था a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a माइनस बी क्यूब के लिए। तो देखो ये a माइनस बी क्यूब है, अप्लाई दिस फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म क्यूब x बाई 2 क्यूब क्या होगा, x क्यूब बाई 8, x क्यूब बाई 8 माइनस माइनस सेकेंड टर्म क्यूब 2 बाई एक्स क्यूब 8 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, इट्स एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू सेकेंड टर्म 2 बाई एक्स। डन। ये पूरी एक टर्म है, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x बाई 2 इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। डन। सो 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर। ये हो गया एक्सपांशन क्यूब का। अगेन 4C1 की वैल्यू होती है 1, और अगेन यहाँ पर x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स रेज टू 4 है, तो 4 पावर लेके अगेन बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, a माइनस बी रेज टू 4, तो क्या होगा 4C0 की वैल्यू पुट करें। 4C0 क्या होगा, ये 4 है, 4C0 क्या होगा 1, भगवान 1 इंटू एक्स बाई 2 का 4 पावर माइनस 4C1 होगा 4, और फर्स्ट टर्म का 3 पावर x बाई 2 का 3 पावर, तो इट्स एक्स क्यूब बाई 8, और सेकंड टर्म का होगा 1 पावर, तो इट्स 2 बाई एक्स। डन। 4C0 4C1 प्लस 4C2 होता है 6, 4C2 होता है 6, फर्स्ट टर्म का 2 पावर सेकंड टर्म का 2 पावर, सो x बाई 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस होगा 1 माइनस है ना, प्लस माइनस होगा क्योंकि माइनस साइन है। तो 4C0 4C1 4C2, उसके बाद 4C3 की वैल्यू होगी 4C3 फर्स्ट टर्म का 1 पावर, तो इट्स एक्स बाई 2, सेकेंड टर्म का कितना पावर होगा, सेकेंड टर्म का होगा 3 पावर, सो 2 क्यूब 8 एक्स क्यूब प्लस 4C4 होता है 1, एक्स बाई 2 का 0 पावर और 2 बाई एक्स का 4 पावर, सो 2 2 जा 4 बाई 16, 2 का 4 पावर कितना होता है 16 अपॉन एक्स रेज टू 4। ये हो गया एक्सपांशन फोर्थ टर्म का, उसको पूरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया है ना, सिर्फ लेंथी कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। डन। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। ये सब समझ में आया है ना। ये 1 पावर था तो ये 1 पावर एज इट इज लिखा, ये 2 पावर था तो 2 पावर का स्क्वायर करके लिखा, ये 3 पावर था तो वो क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये 4 पावर था
तो हमने फिर से बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया और शॉर्ट में यूज किया है ना, 4C1 की वैल्यू सब साथ में लिखी और आंसर लाया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप वो 4C0 सब लिख के आप फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। डन। तो अभी इसका एक्सपांशन करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 2 जा 4, so it's a 2x, 1 plus 2x minus 8x, 8 by x minus 8 by x. This will be 3 by 2 x square, 3 by 2 x square minus 6 2 जा 12 plus 24 x square, 24 x square, यहाँ से x cube by 2, x cube by 2 minus 8 4 जा 32 by x cube, 32 by x cube, और ये इसका पहले अंदर सिंप्लीफाई करो, क्या होगा 2 2 जा 4 और ये x कट, तो 3 by 2x, 3 by 2x और 3 by 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 6x minus 6x, दिस इज minus 6x, और यहाँ पर 2 2 जा 4, एक x कट 6 by x, और 6 by x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 6 4 जा 24 by x, so it's a plus 24 by x. डन। और ये 1 2 3 4 5 टर्म्स है, सो प्लस x raised to 4 by 2, so it's a x raised to 4 by 16 minus 4 2 जा 8 और ये x कट तो minus x square, minus x square, here 4 4 cut, x square cut, so plus 6 minus ये होगा 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये प्लस 16 बाई एक्स रेज टू 4। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। क्लियर। और आगे सिंप्लीफिकेशन करना हो तो लाइक टर्म्स को साथ में ऐड करके आंसर लिख सकते हो। तो क्या आंसर आएगा देखो, ये कांस्टेंट वाली टर्म ले लो, कांस्टेंट वाली टर्म, सो 1 माइनस 12 प्लस 6, 6 प्लस 1 7 माइनस 12 माइनस 5, एक्स वाली टर्म ले लो 2x 6x, सो 2x माइनस 6x माइनस 4x। उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाली टर्म ले लो, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स कौन सी है, 3 बाई 2 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, सो 1.5 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 बाई 2, इट्स एक्स स्क्वेयर बाई 2, एक्स स्क्वेयर बाई 2। उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म ले लो, एक्स क्यूब, सो इट्स एक्स क्यूब बाई 2, बस एक ही है, सो प्लस एक्स क्यूब बाई 2, एक्स क्यूब बाई 2। उसके बाद एक्स एस टू 4 वाली टर्म ले लो, एक्स एस टू 4 वाली टर्म, एक्स एस टू 4 16 नहीं है, सो प्लस एक्स एस टू 4 बाई 16 है ना, 4 तक आ गया। अभी 1 बाई एक्स वाली टर्म ले लो, 1 बाई एक्स, सो माइनस 8 बाई एक्स 24 बाई एक्स, सो 24 बाई एक्स, 24 माइनस 8 16 बाई एक्स, so it's a plus 16 by x। उसके बाद 1 upon x square, 24 x square minus 16 x square, so it's a 8 1 upon x square, x cube वाली टर्म 32 x cube, बस नहीं है तो माइनस 32 x cube। उसके बाद x raised to 4 वाली टर्म, दिस वन, so plus 16 upon x raised to 4। this is the final answer, this is your answer। Clear? So this is how you can solve your question number 9. Clear? Very good. So last question of this chapter, question number 10, same as question number 9। 9 में जो किया वही 10 में करना है ना, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, लेंथी जो कैलकुलेशन है सारे। तो देखो
find the expansion of which term? 3x square minus 2ax plus 3a स्क्वायर क्यूब, इसका एक्सपांशन करना है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ये यूज करना है। तो अगेन यहाँ पर तीन टर्म है, देखो बायनोमियल में कन्वर्ट करें तो बायनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये दोनों टर्म एक्स वाली है ना। लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने एक्स वाली टर्म साथ में लिया था, यहाँ पर भी अभी कौन सी दो टर्म साथ में लेने वो कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों टर्म एक्स वाली टर्म है, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। डन। सो बायनोमियल विल बी लाइक दिस 3x square minus 2x plus 3a square raised to 3. This is our binomial. This is our x, this is our y, और our index is 3. तो इसका एक्सपांशन यूजिंग बायनोमियल थ्योरम क्या होगा? 3c0 फर्स्ट टर्म उसका क्यूब। सो फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर माइनस 2ax इसका क्यूब, सेकंड टर्म का 0 पावर, प्लस 3c1 फर्स्ट टर्म का 2 पावर, फर्स्ट टर्म का 2 पावर है ना, 3 पावर 2 पावर डिक्रीज होगा, और सेकंड टर्म का 1 पावर। सो 3a स्क्वायर रेज टू 1 प्लस 3c2 3c0 3c1 3c2, so it's a 3x square minus 2ax, 3 पावर 2 पावर ये 1 पावर, और सेकंड टर्म का 0 पावर 1 पावर, और ये 2 पावर होगा 3a स्क्वायर रेज टू 2 प्लस 3c3 फर्स्ट टर्म का 0 पावर तो 1 हो गया, और सेकंड टर्म का कितना पावर आएगा? 3 पावर। बस एक्सपांशन हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 पावर को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर फिर से क्यूब अप्लाई करके लिखेंगे। डन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3c0? 3c0 इज 1, 3c1 3, 3c2 3, और 3c3 1। डन। सो हियर 3c0 1 1 into ये अगेन 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब फॉर्मूला अभी यूज किया था, वो a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर। 3 पावर है ना, इसका एक्सपांशन में टोटल 4 टर्म मिलेगी, तो ये 4 टर्म यहाँ से हमें डिराइव करना है। सो 3c1 इज 1, ये 1 हो गया, और यहाँ पर 3x स्क्वायर का क्यूब, 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस 2ax का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू बी, इट इज 2ax प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 2ax का स्क्वायर। ये हो गया एक्सपांशन फर्स्ट टर्म का। डन। प्लस 3c1 होता है 3, और इसका एक्सपांशन a माइनस बी होल स्क्वायर है ना। कभी कभी ये फॉर्मूला भी भूल जाते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाए। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर इज 3x स्क्वायर रेज टू 2 माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म 3x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2ax का होल स्क्वायर। डन। और इसके मल्टीप्लिकेशन में ये है 3a स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर को भूलना नहीं है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूँ 3a स्क्वायर। डन। प्लस हियर ये 3a स्क्वायर का स्क्वायर तो होगा 9a रेज टू 4, और ये 3 को मल्टीप्लाई करें तो होगा 3 इंटू 3a स्क्वायर का स्क्वायर 9a रेज टू 4, 9 3 जा 27, 27a रेज टू 4, और इसका 1 पावर एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 2ax। डन। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 3c3।
3c3 होता है 1 इंटू, और ये 3a² का क्यूब, 3³ 27, और a² का क्यूब 2 इंटू 3 a⁻6। डन। सिंप्लीफाई करो, आंसर लिखो। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर? कौन? यहाँ पर? यहाँ पर? यहाँ पर? ये देखो, ये होगा 9a² का 2 पावर 9a⁴। ये सुन, ये 3c1। हाँ तो ये मैंने अभी लिखा है ना, अभी ये इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है। देखो ये मैंने बाकी रखा है, ये 3 इंटू 3a² है ना, ये लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। अभी ये मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। क्लियर? इससे क्लियर है ना? 3 3 9 a², ये मल्टीप्लीकेशन करना बाकी है। तो देखो ये इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो 3x² का क्यूब, 3³ 27, 27x⁶ माइनस 2ax का क्यूब 8a³ माइनस 3² 9, 9 3 = 27, 27 2 = 54, 54 x⁴ into x⁵ and a, so 54a x⁵ डन। ये उसके बाद ये 2² 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36 x⁴ x⁴, फिर ये 36a x⁴, 36a², 36a² x⁴। डन। ये समझ में आया? 1 2 3 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स, प्लस ये देखो 3 3 = 9a², 9a², इसको अभी सिंप्लीफाई करो। 3x² का स्क्वायर, तो 3x² क्या होगा? 9x⁴, 9x⁴ माइनस 3 2 = 6, 2 = 12, 12a x³ प्लस 4a² x²। अभी इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। डन। प्लस इसका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 27 3 = 81, 81 a⁴ x² माइनस 54 a⁵x प्लस 27 a⁶। इसको फिर से अंदर एक्सपांशन करो और आगे एक और स्टेप सिंप्लीफाई करो। क्या होगा? यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके ऊपर ही लिख देते हैं ना। 9 9 = 81, तो इट्स अ प्लस 81 a² x⁴ माइनस 12 9 = 108, 108 a³ x³ प्लस 9 4 = 36, 36 a⁴, a⁴ x²। डन। इसका सिंप्लीफिकेशन ऊपर आ गया। अब ये सारी लाइक टर्म्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको लास्ट में सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है। तो स्टार्ट करें x⁶ वाली टर्म। x⁶ वाली टर्म कौन सी है? 27 x⁶, और कोई है 6 वाली टर्म? 27 ये रहा, 27 a⁶। तो दोनों को ऐड करो तो क्या होगा? ये a⁶ ऐड नहीं होगा, तो दिस विल बी 27 x⁶। उसके बाद 5 वाली टर्म, सो माइनस 54 a⁵, और a⁵ कहीं पर भी नहीं है, और x⁵ का पावर कोई नहीं है। सो इट्स माइनस 54 a x⁵। अभी x⁴ वाली टर्म, तो देखो x⁴ वाली टर्म 1, ये 1 और कहीं पर होगी
ये रही 36 प्लस 81 क्या होगा 117, तो इट्स अ 117 ए स्क्वेयर एक्स रेज टू 4। अभी एक्स क्यूब वाली टर्म, तो एक्स क्यूब वाली टर्म माइनस 8 ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 108 ए क्यूब एक्स क्यूब, बस ये दोनों, तो 108 माइनस 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, डन। अभी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म कहाँ पर है, ये रही 36 और ये 81, अगेन 117, इट्स अ 117 ए रेज टू 4 एक्स स्क्वेयर, डन। अभी एक्स वाली टर्म, सो इट्स अ 54 माइनस 54 ए स्क्वेयर एक्स, और कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स विदाउट एक्स 27 a raised to 6 is the final answer. This is your final answer. Clear? So this is how you can solve your question number 10.